Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome to you all. We are meeting after quite a long time. We have completed 25 shlokas of chapter 2. 25वें श्लोका तक हमने किया था. So before we start करने से पहले, there was a question somebody asked me in the due course. प्रभु जी, भगवद गीता में सिर्फ उपदेश ही है या कुछ ठोस भी कृष्णा बोल रहा है? Is Bhagavad Gita full of only advices, or Krishna is also giving some what is that, strong orders? Yes, Bhagavad Gita is a book of, or a manual of many upadeshas, but there is one adesha. तो भगवद गीता बहुत सारे उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं और अंत में वो एक आदेश भी देते हैं. क्या है ये आदेश? The आदेश is सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. This is the adesha he gives. And of course, there are many upadeshas that he also gives in the due course. Then another question was asked, how to study Bhagavad Gita, Prabhuji? Bhagavad Gita का अध्ययन हम कैसे करें? What is the best way to study Bhagavad Gita? So of course Prabhupada says in Bhagavad Gita that Bhagavad Gita has to be studied or must be understood the way Arjuna understood on the battlefield. Matlab without any doubts, without having any doubts on the words of Krishna. तो कृष्ण के आदेशों के उपदेशों के ऊपर कोई भी संदेह ना रखते हुए पूरी तरह हम उसको मान्यता करते हुए हमको भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए as it is, यथारूप. To fine tune, भगवद गीता can also be studied like a doctor. एक डॉक्टर की तरह हम पढ़ सकते हैं. How does a doctor approach a case? एक मरीज के बीमारी के लिए एक डॉक्टर कैसे अप्रोच करते हैं? He first analyzes, he studies and he tries to know. तो एक एनालिटिकल वे, एक संशोधनात्मक तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बट विदाउट डाउटिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा. कृष्णा के पदों के बारे में हमें कोई शंका नहीं रखना है, लेकिन हमारी जानकारी के लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं. We can ask questions for our understanding. Bhagavad Gita can also be studied like a cook. जनरली एक रसोई घर में एक बावर्ची कैसे अप्रोच करता है? He goes by the recipe. मतलब उसके पास एक रेसिपी है और उसको वो देख के वो अपना वो जो व्यंजन है वो बनाता है. He prepares his dishes according to a fixed recipe, but he can add his personal touch to that. वो अपना निजी एक टच बोलते हैं ना, हाथों की गुण, वो भी उसमें वो डाल सकता है.
without changing the very nature of that food substance or that व्यंजन। बिरयानी को बिरयानी की तरह ही बनाना है, लेकिन अपना फ्लेवर वो डाल सकते हैं। भगवद गीता कैन ऑल्सो बी स्टडीड लाइक एन एक्टर। एक अभिनेत्री की तरह हम अप्रोच कर सकते हैं। कैसे एक अभिनय करने वाला क्या करता है, वो अपना ही एक्सप्रेशंस उस स्क्रिप्ट में डाल देता है। एक स्क्रिप्ट डायरेक्टर देता है, कृष्णा ने हमको एक स्क्रिप्ट दे दिया, उसमें हम हमारे एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं। हम उसका मीनिंग्स चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग्स ऑफ द भगवद गीता श्लोकास, बट हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हम डाल सकते हैं विदाउट changing the meanings of the particular shloka. So these are the ways we can approach Bhagavad Gita. But Bhagavad Gita को यथारूप as it is approach करना चाहिए. So what do we get from Bhagavad Gita? The third question, let me deal with this also and before we go ahead. Bhagavad Gita पढ़ने से हमें क्या मिलता है? Bhagavad Gita, when we read, we first of all get knowledge, the ultimate knowledge. तो जानकारी मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है। दूसरा, हमें स्किल्स, कैसे कोई काम करना चाहिए, वो स्किल्स भी हमें सीखने को मिलता है। वी गेट टू अंडरस्टैंड द स्किल्स एंड वी ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, हाउ टू बी। हमें सिद्धांतों के बारे में, हमें अपने वसूलों के बारे में, सही वसूलों के बारे में जानकारी कृष्णा देता है, कैसे हमें जीवन को बिताना चाहिए। सो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन चीजें हमें भगवद गीता में मिलता है। संबंध, हमारे और भगवान के संबंध क्या है, हमारे इस लोक का संबंध क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अस एंड गॉड, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अस एंड दिस वर्ल्ड, व्हाई वी आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड। सो संबंध, नॉलेज वी गेट। फिर अभिधेय, कैसे हमें इस जगत में रहना चाहिए, हम इस जगत में रह के कैसे हम आध्यात्मिक की ओर जा सकते हैं, हाउ वी कैन गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो अभिधेय। देन वी आल्सो गेट प्रयोजना, तो ये सब करने के बाद इसका प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग भगवद गीता, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता। तो ये भी ये भी जानकारी हमें भगवद गीता से ही मिलता है। वी गेट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग थ्रू भगवद गीता when we go through the via medium of spiritual master or his representative। जब हम गुरु के माध्यम से या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जाएंगे, हमें ये सब जानकारी मिलता है। तो भगवद गीता, how it has been arranged, so Krishna is starting second chapter as a summary, पहले अवलोकन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो initially itself Krishna is giving us summary of भगवद गीता, contents of Gita summarized, that's the second chapter। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because the brain, human brain actually thinks in terms of maps, we don't think in terms of words। actually हम शब्दों के माध्यम से हम सोचते नहीं है। हमारा ब्रेन कैसा काम करता है, हम सोचते हैं मैप्स की तरह। तो पहले ही कृष्णा एक बिग पिक्चर दे रहे हैं, एक अवलोकन करा रहे हैं। तो भगवद गीता स्टार्ट भी होता है रणभूमि में एक फार एंगल से, फिर जूम इन हो रहा है कृष्णा और अर्जुन के पास। सो ऑल दी कैरेक्टर्स आर शोन एंड देन द मेन कैरेक्टर्स आर शोन, कृष्णा एंड अर्जुना, एंड देन देयर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता का ऐसे एक सुंदर व्हाट यू कैन से अरेंजमेंट कृष्णा ने किया है और गुरु माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है। And the last question somebody asked was, what is real education, Prabhu? भगवद गीता ही real education है क्या? The answer for this is, मतलब असली विद्या क्या होता है, सही विद्या क्या होता है? That which builds our character, that is real education। जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, वही एक सच्चा विद्या है, एजुकेशन है। दिस इज द जिस्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो भगवद गीता इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। व्हाई? बिकॉज it gives us that knowledge by which we can establish our sambandha, abhideya and prayojana with respect to the highest goal of life। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए
जो हमें विद्या देती है वो भगवत गीता है। हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, हमारे व्यक्तित्व को वो बिल्ड करता है, हमारे चरित्र को वो साफ करता है और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सो विद दिस नोट we will continue chapter 2. Text number we were doing is 26. So I'll display it on your screen. 26. Atha chainam nityajatam nityam va manyase mrutam tatapi tvam mahabhaho nainam shochitam arhasi. If, however, you think that the soul is perpetually born, atachainam, nityajatam, perpetually born, and always dies, nityam va manyase mrutam, still you have no reason to lament. Tatapitvam, nainam sochitam harasi, O mighty armed, महाबाहो. तो अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण बता रहे, अगर हम ये मान ले कि हाँ आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का जन्म तो होता नहीं है, देह का जन्म होता है, लेकिन कृष्णा इज नाउ गोइंग बाय व्हाट इज कॉल्ड एज एथिस्टिक व्यू पॉइंट। चलो हम ये भी मान ले, अथच एनम, मतलब चलो ये भी मान ले, अथच एनम क्या मान ले, नित्य जातम, कि यू थिंक दैट द सोल इज परपेचुअल, आत्मा का जन्म हो रहा है और वो मरता भी है, फिर भी ऐसे भी हम मानेंगे महाबाहो, तो भी हमें सोचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, आपको सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा जन्म ले रहा है और वो मृत्यु पा रहा है और फिर जन्म ले रहा है फिर मृत्यु पा रहा है, तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं? आप इतना सोचित, आप इतना सोचन मतलब इतना दुखित क्यों है? Why are you so unhappy about it? Even if I consider atheistic viewpoint, एक नास्तिक की तरह मैं सोचूंगा तो भी सोचने की कोई बात नहीं है। So when Krishna continues, we will go to the next shloka. I will come back to the purpose later. So then he now comes to a karma viewpoint. Jatasya hi dhruva mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmad apariharye arte natvam shochitum arhasi. फिर कृष्णा बता रहे हैं, अगेन कृष्णा इज टेलिंग देयर इज नो नीड टू लैमेंट. सो फॉर वन हु हैज टेकन हिज बर्थ, death is certain, as sure as death. That is the theme of today's topic. And for one who is dead, birth is certain. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अगर कोई जन्म ले रहा है जातस्य, तो उसका मृत्यु निश्चित है, ध्रुवो मृत्यु, और अगर कोई मृत्यु पा रहा है, ध्रुवम मृतस्य, ध्रुवम जन्म मृतस्य, अगर कोई मृत्यु पा रहा है, मृतस्य ध्रुवम जन्म, मतलब वो ये तय है कि उसका जन्म फिर से होगा। तो इसीलिए आप अपना जो कर्तव्य है उसको आप करिए, तस्मात् अपरिहार्य, आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? अपने कर्तव्य आप कर सकते हो, जो जन्म और मृत्यु आपके हाथ में है ही नहीं। तो न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। सो वी विल मूव ऑन टू श्लोका नंबर 28. देन कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट, सो कृष्णा इन 26 एथिस्टिक व्यू पॉइंट, नास्तिक का दृष्टिकोण से बताया। तो और फिर कृष्णा एक थियरी, फिलॉसफी यूज कर रहे हैं, एथिस्टिक रिडक्शनिस्ट थियरी। तो 26 श्लोका में रिडक्शनिस्ट थियरी हमने सीखा। फिर 27 में हमने सीखा कि एज श्योर ऑफ डेथ, कि वो बता रहे हैं कि मृत्यु तो होगा ही, उसको कोई मतलब अपरिहार्य, उसका कोई परिहार है ही नहीं, मृत्यु तो होगा ही। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, व्हाट इज द नीड टू लैमेंट, क्यों आप सोच में पड़ रहे हो? तो कृष्णा क्या एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे? सो कृष्णा इज एडवाइजिंग हियर दैट आप मृत्यु
को जीत नहीं सकते, अपरिहार्य है, लेकिन मृत्यु से आने वाले जो पीड़ा है, वेदना है, उसको आप समतोलन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. सो यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स. यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल डेथ, but you can control the feelings that come when somebody dies. Then in 28, avyaktadini bhutani vyakta madhyani bharata avyakta nidanani eva tatra ka paridevana. Paridevana matlab, paridevana again means lamentation. So Krishna is telling here, all created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when they are annihilated. So what need is there for lamentation? So let us see like this. इस दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि कोई भी जीव जंतु पहले नहीं दिखता था, जन्म से पहले तो वो हमें दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ था, तो अनमैनिफेस्ट मतलब अव्यक्त था पहले. फिर मध्य क्या हुआ? व्यक्त मध्यानि भारत, तो बीच में जन्म हो गया, फिर हमें दिखने लगा. फिर क्या हुआ? अव्यक्त निधनानि, फिर मृत्यु होने के बाद फिर वो नहीं दिखे. सो भगवान कृष्ण क्या बताने की सोच रहे हैं यहाँ पे? पहले नहीं था, अब है, फिर जब मृत्यु होगा नहीं दिखेगा. तो ये सब तो चक्र की तरह चलता ही रहेगा. तो आप क्यों चिंता में पड़ रहे हो? ये आपके हाथ में है नहीं. आपके हाथ में आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, उसको आप कीजिए. सो दिस इज हाउ कृष्णा ट्राइज टू मोटिवेट अर्जुना टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. सो व्हाट इज द 28th श्लोका ट्राइंग टू टेल अस? पहले नहीं था मतलब पहले नहीं दिख रहा था लेकिन नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, बाद में नहीं दिखेगा लेकिन रहेगा. So what is the theory we are following? A very famous theory. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change form. तो शक्ति जो है वो कभी उसका क्रिएशन नहीं हुआ, सृजन नहीं हुआ, कभी वो मिट नहीं जाएगा, लेकिन वो अपना जो स्टेट है उसका परिवर्तन हो सकता है. So that is the theme that happens in shloka number 28. So we'll move on with the explanations, purports. So in 26th shloka, Prabhupada talks about there are class of philosophers like Buddhists. There are other class of philosophers like Lokayatikas and Vaibhashikas. तो कृष्ण बता रहे हैं कि तत्वज्ञानियां अनेक तरह की होते हैं. बौद्ध धर्म का तत्वज्ञानी हो सकते हैं, और लोकायतिकास और वैभाषिकास. कृष्ण के टाइम में तो बौद्ध धर्म तो था नहीं, लेकिन वैसे सोच वाले थे, तो लोकायतिकास वैभाषिकास उनको बोला जाता था. These philosophers maintain that life symptoms or soul takes place at a certain mature condition of material combination. So the false theory that life comes from matter, this is the philosophy they follow. तो ये जो तत्वज्ञानी हैं, वैभाषिकास, लोकायतिकास और बाद में बौद्ध धर्म वाले, ये मानते हैं कि भौतिक चीजों का सम्मिलन से, रासायनिक चीजों का सम्मिलन से कुछ समय में जीव का उत्पन्न होता है या जीव का लक्षण देखने को मिलता है. So this is a false theory, but this is what they believe in. The modern material scientists and material philosophers also think similarly. तो हमारे भौतिक जो आजकल के विज्ञानी हैं और जो तत्वज्ञानी है, भौतिक दृष्टिकोण रखने वाले, ये भी ऐसे ही सोचते हैं. क्या? लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर. तो but Prabhupada is very strongly telling, and all the Vedas and Krishna also in Bhagavad Gita says life comes from life. जीवन से ही जीव आता है, और भौतिक वस्तु से जीव नहीं आ पाएगा. The science of anthropology is also based on this philosophy. जो आजकल के एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट मैटर है,
वो भी यही सोचते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर. सो करेंटली मेनी सूडो रिलीजन्स आर आल्सो अडियरिंग टू दिस फिलॉसफी. बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं, कुधर्म है जो सही नहीं है, वैसे धर्म है, वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि जीव का उत्पन्न भौतिक चीजों से होता है. तो प्रभुपाद चैलेंजेस देम कि अगर ऐसी बात है तो कोई मर गया है तो कोई रसायन की कमी है, सो देयर इज सम केमिकल्स लैकिंग अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई डोंट यू गिव दैट केमिकल्स एंड मेक हिम अलाइव. तो ये तो कोई कर नहीं पाया आज तक, सिर्फ वो क्लेम कर रहे हैं. तो प्रभुपाद सेज देम दैट इज नॉनसेंस. अगर कोई सिर्फ क्लेम्स कर रहा है और उसका वो मतलब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है तो वो नॉनसेंस है. So in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is atomic soul or whether he did not believe in the existence of their soul, he had no reason to lament. तो कृष्णा ने, अगर आप आस्तिक भी हो, नास्तिक भी हो, अगर आप नास्तिक कौन है? जो आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा को मानता है, भगवान को मानता है. नास्तिक कौन है? Who is an atheist? One who does not believe in soul, existence of soul, one who does not believe in the existence of God. जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में नकारता है, नहीं है बोलता है, और जो भगवान को नहीं है बोलता है, वो नास्तिक है. अगर आप इस तरह से भी सोचो या उस तरह से भी सोचो, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं. सो कृष्ण सरकास्टिकली एड्रेस अर्जुन एज महाबाहु. हमने देखा श्लोक नंबर 26 में एक व्यंग्य रूप से कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि महाबाहु अपने धनुष को नीचे छोड़ चुका है, वो बोल रहा है मुझे लड़ाई नहीं करना, आई डोंट वांट टू फाइट. सो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड पर्सन हैज लेफ्ट हिज आर्म सेइंग आई डोंट वांट टू फाइट. सो कृष्ण इज ट्राइंग टू नीडल हिम सेइंग दैट महाबाहु, ए शक्तिशाली अर्जुना, अब तो तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम महाबाहु ही हो. तो एज ए क्षत्रिय अर्जुन बिलोंग टू वैदिक कल्चर. अर्जुन तो वर्णाश्रम धर्म को मानता था, एंड इट बिहूव्ड हिम टू कंटिन्यू टू फॉलो इट्स प्रिंसिपल्स. तो उसके अनुसार वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का परम धर्म है रक्षा करना अपने प्रजा का, और दुष्कर्मियों को सजा देना, और युद्ध में उनको मात देना, टू डिफीट ऑल द बैड एलिमेंट्स इन अ वॉर and to protect the good elements. That is the duty of a kshatriya. So now he has forgotten his duty and he is saying that I will not fight. So atacha enam. So the shloka content about atacha enam is let's suppose. Chalo ye bhi maan lenge. Like that Krishna is telling. Then moving on to 27. One has to take birth according to one's activities of life. तो कैसे किसी का जन्म होता है इस भौतिक जगत में? हाउ डज समबडी टेक बर्थ? वेयर डज ही टेक बर्थ? टू whom he is born? It's all dependent on one's activities in this life and in the next life. तो हमारे पूर्व जो कर्म है, पिछले जो कर्म है, उसके आधार पे हमें एक शरीर मिला है, और आज हम जो कर्म करेंगे उसके आधार पे अगला शरीर मिलेगा. That is the basis of getting a body. Our activities which we have done in the past and which we continue to do now. And the cycle of birth and death is revolving. तो जनन मरण का ये चक्र चल रहा है. It does not however support unnecessary murder. हाँ, जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का खून कर दूं या कोई पशु का मैं घात कर दूं, स्लॉटर कर लूं, या युद्ध बिना कारण में छेड़ दूं. So without any reason, I cannot instigate a war. I cannot slaughter an animal. I cannot murder a person saying that anyway everybody is going to die. No, that is not possible. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन हाँ, हिंसा का अपनी जगह है, युद्ध का अपनी जगह है. अगर सही तरीके से उसको प्रयोग किया गया, if it is used in a proper way, then it can be used to keep law and order. व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी एक पुलिसमैन, एक सोल्जर हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा उसको, या फिर
उसको युद्ध छेड़ना पड़ेगा। लेकिन हम इसको तैयार कैसे करेंगे, युद्ध कैसे छेड़ेंगे? कभी भी छेड़ सकते हैं क्या? नहीं। इट हैज टू बी बाय द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हमारे सुपीरियर्स जो ज्ञानी हैं, उनके आदेश के अनुसार यदि जरूरत पड़े तो युद्ध भी हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स द वॉर विल बी फॉट बाय आवर सोल्जर्स ऑन आवर बिहाफ। युद्ध हमारे सैनिक हमारे बिहाफ वो लड़ाई करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी गो फॉर द वॉर। सो तो कर्मा लाइन ऑफ थॉट इज कंटिन्यूइंग इन श्लोका नंबर 27। कर्म मीमांसा, ये तत्व से कृष्ण बात कर रहे हैं श्लोका नंबर 27 में। The battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event. तो शांति दूत बन के जब कुछ नहीं बना तो युद्ध तो अनिवार्य था, और ये युद्ध तो कृष्ण ने अभी तय कर दिया है कि युद्ध होगा, तो वो अनिवार्य है। And to fight for the right cause is the duty of a क्षत्रिय। और इस जगह क्षत्रिय होके अर्जुन का ये धर्म है कि वो ये युद्ध को लड़े, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और भगवान कृष्ण ने इसको सूत्रधार बन के रचना किया है। By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action। और यदि अगर अर्जुन ये युद्ध नहीं करेंगे, अब तक वो बोल रहे युद्ध करने से पाप हो जाएगा, और कृष्णा इज टेलिंग हिम, कृष्णा बता रहे हैं कि युद्ध तुम नहीं करोगे, ये धर्म युद्ध से तुम भाग जाओगे, चले जाओगे, ये पाप है, तुम्हें ये पाप नहीं करना है। यू वुड बी डिग्रेडेड ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग पाथ ऑफ एक्शन। अब गलत रास्ता चुनेंगे यदि अगर आप अभी युद्ध नहीं करोगे। और आप मृत्यु किसी का तो आप रोक ही नहीं सकते। भीष्म को एक दिन मरना है और द्रोण को एक दिन मरना है, आपको भी एक दिन मरना है, इसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। सो कृष्णा says that what is Krishna trying to tell us here, or what is that we are trying to understand here? Life is a preparation, death is examination। तो हमारा जीवन हमारा तैयारी है, किसके लिए? क्योंकि मृत्यु के समय एक एग्जाम आएगा, और मृत्यु के समय उस एग्जाम में हमें उत्तीर्ण होना है, पास होना है। तो अभी इस लाइफ में हमको प्रिपरेशन करना है। वी डोंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डेथ। हम एग्जाम के समय नहीं पढ़ते। ऑफ कोर्स मेनी ऑफ अस डिड दैट इन आवर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू स्टडी। राइट वे टू स्टडी इज बिफोर द एग्जाम, नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम। और कुछ लोग एग्जाम के बाद भी पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पेपर दिखा रहे ये आंसर था, ये आंसर था, मैंने नहीं लिखा। सो आवर लाइफ शुड नॉट बी लाइक दैट। अच्छा मुझे ये करना था, अच्छा ये होना था, ये मैं नहीं कर पाया। No, this is not the way we should lead our lives. We must know exactly what we must do and how we must lead our life. For that, Bhagavad Gita is the manual. Bhagavad Gita एक हमारा क्या बोलते हैं, गाइड है इस जीवन को सफल बनाने का। ये नहीं कि हम एग्जाम के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय हम सोचेंगे अच्छा ऐसा बीत गया जिंदगी, हमें ऐसा जीना था। That's not the way we want to live. So there are two classes of philosophers. So we have come to know in shloka number 28, दो तरह के तत्वज्ञानी होते हैं। One believing in the existence of soul, one who does not believe in the existence of soul। एक जो तत्वज्ञानी जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में मानते हैं, और एक ग्रुप है जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में नहीं मानते। And there is no cause for lamentation in either case। तो दोनों जगह शोक का कोई कारण नहीं है। Non-believers in the existence of soul are called atheists। तो who are atheists? जो भी आत्मा का अस्तित्व को नकारता है। One who says that there is nothing called as आत्मा, that means he also will say there is no परमात्मा। आत्मा नहीं है तो वो बोलेगा परमात्मा भी नहीं है, परम आत्मा भी नहीं है। If there is no आत्मा, then there is no परमात्मा। So this is a atheist। So Prabhupada then moves on। He says how from ether air is generated। तो आकाश से वायु का उत्पन्न होता है। From air fire is generated।
वायु से अग्नि का उत्पन्न होता है, फ्रॉम फायर वाटर इज जनरेटेड, अग्नि से जल का उत्पन्न होता है, फ्रॉम वाटर अर्थ बिकम्स मैनिफेस्टेड, और पानी जल से भूमि का क्या प्रकट होता है, भूमि प्रकट हो जाता है, या इट बिकम्स मैनिफेस्ट, एंड फ्रॉम अर्थ मेनी वैरायटीज ऑफ मैनिफेस्टेशंस टेक प्लेस, और भूमि से अनेक जीव जंतुओं का उत्पन्न होता है, मतलब भूमि के माध्यम से, भूमि से मतलब भूमि के माध्यम से। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स। तो जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि शक्ति कभी सृजन नहीं होता, कभी मिटता नहीं है, वो सिर्फ आकार बदलता है। So what cause is there for lamentation either in stage of manifestation or unmanifestation? पहले नहीं था, अभी दिख रहा है, बाद में नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व मिटा नहीं। It is always eternally present. आत्मा हमेशा हमेशा के लिए रहता है, तो उसके लिए शोक क्यों मनाना है? सिर्फ देह बदल जाएगा, बॉडी विल चेंज। सो भगवद गीता कृष्ण से अंतवंत इमे देहा, किसका अंत होगा? व्हाट इज गोइंग टू एंड? देहा। नित्यस्य उक्त शरीरिणः, नित्य क्या है? उक्त मतलब क्या बोलते हैं? नित्य क्या है? शरीरिणः, जो शरीर के अंदर है, जो आत्मा है, वो नित्य है। सो सोल इज एटर्नल। The body is like a dress, therefore why lament the changing of a dress? देह तो एक कपड़े की तरह है, पुराने होते ही हम बदल देंगे। क्या हम कभी पुराने कपड़े चेंज करते वक्त और नए कपड़े पहनते वक्त कभी रोते हैं क्या? अरे पुराना कपड़ा चला गया, नया कपड़ा पहन रहा हूँ। We don't, is it not? We don't cry when we are wearing a new cloth and discarding an old cloth. So similarly, we must not lament when the old body is now passing away and a new body is being obtained. Of course, it does not mean that we should not take it. What is Prabhupada trying to tell here is we must not get into, that it becomes a heavy thing on us. कोई हमारे करीबी दोस्त मर जाएगा, रिश्तेदार मर जाएंगे, फैमिली में कोई मर जाएगा, शोक होगा, बट उस शोक को हमें लंबा नहीं खींचना है। जितना शोक व्यक्त करना है उतना तो करना पड़ेगा, otherwise we will be called emotionless. We cannot be emotionless. We'll have to express some amount of lamentation, not have to, we will, because humans are emotion bound, but we must not drag it for long. We must not become attached to that lamentation. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of material body. तो वैदिक ज्ञान कौन सा आधार पे हमें आत्मज्ञान साक्षात्कार करा रहा है? पहला उसका उपदेश है, यू आर नॉट दिस बॉडी। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, आप इस देह नहीं हो, आप देह के स्वामी हो और आप एक आत्मा हो। यू आर द ओनर ऑफ द बॉडी and you are a spirit soul which is eternal. So we have about 5 minutes time. What I will do is I will consider some general aspects of Bhagavad Gita. So I will go by some questions that people asked. I will try to do that. So what we are learning in this particular section of Bhagavad Gita is spiritual knowledge, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रांसफॉर्म्स होपलेसनेस, मायूसी से हमें बाहर निकाल के, अब हमें कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा है, we are not able to see what should be done, from this state of hopelessness or hopeless, and it brings us endless hope. हमें चेतना देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कोई भी चीज देखेंगे तो हमारे अंदर चेतना जाग उठता है। So that is the purpose of Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita awakens us to follow the right path, and when we follow the right path, when we know things clearly, we will not lament. हमारे जीवन दुखमय नहीं होगा। We will not be lamenting always in life because we have knowledge now. So Bhagavad Gita के क्या-क्या divisions है? So we'll just summarize. Chapter 1. Chapter 1 is
प्रॉब्लम डेफिनेशन, समस्या के बारे में वो बता रहा है. इट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या को आइडेंटिफाई कर रहा है. चैप्टर 1. चैप्टर 2 क्या है जो अब हम पढ़ रहे, समरी है, ग्लिम्पसेस ऑफ भगवत गीता. तो भगवत गीता को संक्षिप्त में कृष्ण हमें बता रहे हैं, बिकॉज कृष्ण इज गिविंग अस एन ओवरव्यू, ब्रेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मैप्स. सो कृष्ण इज गिविंग अस फर्स्ट द बिगर पिक्चर, एक बड़ा दृश्य दिखा रहे, फिर बाद में वो जीरो इन करेंगे और फोकस करके बाकी चीजों के बारे में कृष्ण बताएंगे. चैप्टर 3, 4 एंड 5 एक कर्म योगा, दिस टॉक्स अबाउट कर्म योग के बारे में बात करता है. चैप्टर 6 ध्यान योगा, सांख्य योगा के बारे में बात करता है. एनालिटिकल स्टडी के बारे में बात करता है. चैप्टर 7 to 12 द मिडल पार्ट ऑफ भगवत गीता इज द कोर ऑफ भगवत गीता, क्रीम ऑफ भगवत गीता, जो ऊपर से प्रोटेक्टेड है, नीचे से प्रोटेक्टेड है. 6 चैप्टर्स, बीच में 6 चैप्टर्स प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज गुह्यतमम, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. तो कॉन्फिडेंशियल चीजें कहाँ रखते हैं हम? छिपा के रखते हैं बीच में. वी कीप इट इन द सेंटर, वी कीप इट कवर्ड. सो चैप्टर 7 to 12 talks about bhakti yoga, the real yoga, what we must do. Chapter number 13 to 17 ज्ञान योगा, 13वें से 17वें अध्याय क्या डील करता है? ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं कृष्ण जी. और चैप्टर नंबर 8 फिर से समरी है, लाइक हाउ अ थीसिस इज रिटन. पहले इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, फिर पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है इन डिटेल्स, एंड देन अगेन समरी ऑफ द पर्टिकुलर थीसिस. तो कृष्ण भी एक साइंटिस्ट की तरह भगवत गीता को बोधन किया है. So he has given instructions on Bhagavad Gita similar to a scientist presenting any thesis. So summary or synopsis is 18th chapter. So somebody asked a question, I'll just try to cover it. We face difficulties in life. Why do we face difficulties in life? तो हम हमारे जीवन में कष्ट क्यों पाते हैं? तो इसका 3 कारण हो सकता है. एक तो ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मानसिक तौर से हमें कोई इफेक्ट हो रहा है. 1 इज वर्ल्डली वीकनेसेस, भौतिक चीजों के बारे में दुर्बलता, इसके वजह से हम ट्रबल में आ सकते हैं. ट्रबल में आना मतलब दुख में आना. एंड बॉडीली इनकेपेबिलिटीज, हमारे देह का कुछ लिमिटेशंस है. डिजीज आता है, जरा ओल्ड एज आता है, मृत्यु भी आएगा. इसके वजह से भी हम शोक में आ सकते हैं, एंड वी कैन गेट इनटू डिस्टर्बेंसेस. सो दीज आर द 3 ways, these are 3 main reasons why we can get into distress in our life, and it is usually self made. या इस जन्म का या पिछले जन्म का हमने खुद हमारे ऊपर ये डिफिकल्टीज लेके आए हैं. सो भगवत गीता व्हेन वी रीड like how we are reading now, it helps us rectify all the above. See, mental, worldly, bodily, जो भी disturbances है उसके बारे में सही दृष्टिकोण हमें कृष्णा देते हैं. He gives us proper perspectives so that we can lead a good spiritual life and make our life successful. Thank you very much for joining me this evening. We will try to do more sessions from now on. Hare Krishna. And if you have any questions, please WhatsApp the questions to me. I will surely answer. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram.